So, as you all are well aware of the ongoing situation between India and China, so I thought of making this video for better explanation of what all is happening and what the issue is, what the so as you can see in this, there are 2 points. One is the LOC and other is LAC. So the basic difference between both the points is about the full form. LOC stands for line of control, whereas LAC stands for line of actual control. In the past, when the army and political level people sat down, it was decided what would be the fixed border between India and Pakistan. So it was labeled by LOC, that is the line of control. But it is not the same situation between India and China. To LAC. What India considers LAC is different from what China considers it to be. This is the major point that creates the conflict. As you can see in this, I'll show you in this map. This this is the Pangong region. Over here, there are basically two red lines. Two red lines represent one LAC that is considered by India, and the other LAC is the one that is considered by China. So basically, first I'll start with the Daulat Beg Oldi. This point, from India's point of view, this is a very important point. Daulat Beg Oldi is the only Indian military airport in this whole region. So if there is any clash between India and China, all the weapons and artilleries or anything, missiles, all will be supplied here at this point, Daulat Beg Oldi. So basically क्या हो रहा है कि पिछले 2 डेकेड से या पिछले 20 साल से इंडिया इज ट्राइंग टू बिल्ड दरपक एंड दौलत बेग ओल्डी. अगर ये रोड बन जाएगी तो it would be very easy for India to transport weapons and artilleries. सो दिस इज द मेन थिंग कि चाइना को मिर्चें किस लिए लड़ रही है या किस ये रीज़न है. एक तो ये रीज़न है कि इंडिया ने ये रोड बना ली है जिससे कि इंडिया के पास एक अपर हैंड हो गया है कि इधर मिलिट्री एयरपोर्ट से इंडिया कैन ट्रांसपोर्ट वेपन्स एंड आर्टिलरीज टू डरबक और दिस मोनेस्ट्री और टू हेमिस मोनेस्ट्री whenever there is any kind of war situation. अगर ये होता कि ये दिस ऑल इज अ माउंटेन रीजन, इट इज अ टेरेन रीजन, तो इधर आप ऐसा तो है नहीं कि आप पैदल आराम से कुछ भी वेपन्स कैरी करके इजीली आप पैदल चल सको. क्योंकि ये माउंटेन और टेरेन रीजन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव. So the army people had to trek, and it took many days to trek and supply weapons and other important and essential items required for war. So इसलिए this road acts as a very essential commodity, you can say. So here, as you can see DSDBO road that is spread at a stretch of 323 kilometers. DSDBO stands for Darbak Shok Daulat Beg. Now S, you must be wondering what is Shok. We'll see over here. A river. Shok is a river. As you can see here, this whole blue line is the Shok river. It is basically a river that is also called the river of death. The reason why it is called the river of death is कि ये जो टाइम चल रहा है, जैसे कि अभी जून जुलाई का टाइम हुआ, जून जुलाई से लेकर दिसंबर तक के टाइम में द क्लाइमेट ओवर देयर, इधर की जो टेम्परेचर होता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. सो 0 डिग्री सेल्सियस इज अ टेम्परेचर दैट इज बोथ अ मेल्टिंग एंड अ फ्रीजिंग टेम्परेचर फॉर वाटर. सो होता क्या है कि जितने भी ग्लेशियर्स लोकेटेड है यहाँ पे आसपास, वो जो जब भी मेल्ट होते हैं तो उनका जो भी पानी है वो आ जाता है इस शोक रिवर में, और ये रिवर ओवरफ्लो हो जाती है या फिर उसका लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इस रिवर को क्रॉस करना. और यही रीज़न है कि कल जैसा कि आप देख रहे थे कि न्यूज़ में दिखाया होगा कि अ, जो इंडिया के जो आर्मी के लोगों की डेथ के नंबर थे वो कंफर्म नहीं था. वो कंफर्म इसीलिए ही नहीं था क्योंकि जब इंडिया गालवन ये पॉइंट है, गालवन फ्लैश पॉइंट PP14. PP बेसिकली स्टैंड्स फॉर पेट्रोलिंग पॉइंट 14. ये पॉइंट है जहाँ पे क्लैश हुआ था. जब ये क्लैश खत्म हुआ उसके बाद में जब इंडियन आर्मी वापस अपनी जगह पे आई, बेस पे आ रही थी, भाग कर आ रही थी, जब चाइना की आर्मी ने भी उसका पीछा किया, तो वापस भागते हुए बहुत इट इज़ वेरी कॉमन कि बहुत सारे लोग इस रिवर में गिर सकते हैं, तो इसीलिए अनक्लेम्ड बॉडीज थी वहाँ पे. इसीलिए जो नंबर था वो फिक्स नहीं था डेड बॉडीज का. ओके, सो नाउ वेन एवर वी टॉक अबाउट वॉरफील्ड, जब भी हम वॉरफील्ड की बात करते हैं तो हमेशा वी नो कि जो ऊपर होता है वो एडवांटेज में होता है.
What I mean by this statement is that army of the nation that is situated at a high altitude is always at a always has an upper hand in the war like situation or war. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जो किला था चित्तौड़गढ़, उस पे 14 बार 14 अटैक्ड, 14 बार उस पर हमला हुआ था, लेकिन एक भी बार कोई भी आर्मी, कोई भी दुश्मन की फौज थी वो एक भी बार सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। द मेन रीजन इज कि जो चित्तौड़गढ़ का किला था इट वॉज सिचुएटेड एट एन हाई एल्टीट्यूड, और ऊपर से इट इज वेरी इजी टू टारगेट द एनिमी। ऊपर से आप एनिमी को इजीली टारगेट करके गिरा सकते हो, मार सकते हो, बट नीचे से ऊपर जाना इज वेरी डिफिकल्ट। सो बेसिकली द सेम पॉइंट लाइज हेयर, द सेम सिचुएशन अराइजेज हेयर। ये जो गालवन फ्लैश पॉइंट है PP14, जो कि पेट्रोलिंग पॉइंट है 14, ये सबसे हाई एल्टीट्यूड पे है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो भी ब्लैक रीजन है, जितना भी ये ब्लैक रीजन है आसपास का, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सबसे हाई एल्टीट्यूड है। और ये जितना भी लो रीजन है, व्हाइट कलर वाला माउंटेन्स है, जो लाइट कलर से, लाइट ब्राउन कलर से जो शो किया गया है, का रीजन है, लो लेवल का रीजन है। तो अगर चाइनीज आर्मी गालवन फ्लैश पॉइंट PP14 पे हक जमा पे पहुंच अगर यहाँ पे पहुंच जाती है, तो वो आराम से देख सकती है कि इंडिया में इधर बॉर्डर पे बेस पे आर्मी के बेस पे क्या हो रहा है, आराम से नजर रख सकती है। इसीलिए चाइनीज आर्मी चाहती है कि वो किसी कुछ भी करके बस PP14 जो पॉइंट है उसको कब्जे में ले ले। नाउ व्हाट हैपेंड इज, पिछले कुछ पोस्ट बनाई, चेक पोस्ट बनानी शुरू कर दी। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर इस जगह पे गालवन रिवर के गालवन रिवर के साथ में चाइनीज पोस्ट 2, चाइनीज पोस्ट 1, ये दोनों चेक पॉइंट्स है। ये तीसरा चेक पॉइंट चाइना रोड, चाइना की रोड जहाँ तक सैटेलाइट इमेज दिखा सकती है। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ब्लैक लाइन अलोंग विद द ब्लू लाइन दैट रिप्रेजेंट्स द गालवन रिवर, ये जो ब्लैक लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है चाइना की पक्की रोड जो कि वो बना चुके हैं। ये प्रॉपर रोड है जहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट आराम से चल सकता है। और ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है जो टेम्पररी कैंप्स जो कि चाइनीज आर्मी ने पिछले कुछ हफ्तों में लगाए हैं गालवन फ्लैश पॉइंट PP14 को कैप्चर करने के लिए। अब चाइना को बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इंडिया ने डिसाइड करा है कि जो इंडियन आर्मी का ITBP बेस है, ITBP का मतलब है इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स, इसका जो बेस है इधर से लेके शोक रिवर के ऊपर हम एक ब्रिज बनाएंगे। और ये ब्रिज बना के हम गालवन फ्लैश पॉइंट PP14 तक एक रोड बनाएंगे। इस रोड से होगा क्या कि इस ब्रिज और रोड से ये होगा कि जो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है वो उसमें काफ़ी आराम मिल जाएगा इंडिया को। तो ITBP बेस से इंडियन आर्मी से चाहे वेपन्स हो चाहे खुद आर्मी की फौज हो, इजीली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करना बहुत इजी हो जाएगा। जोग्राफिकली स्पीकिंग जो गालवन फ्लैश पॉइंट PP14 है उधर से लेके इंडियन आर्मी ITBP बेस जो है वो 8 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है। ऐसे बोलने में बहुत आसान है कि सिर्फ 8 किलोमीटर्स ही तो है, पैदल जाया जा सकता है, बट बीइंग अ माउंटेन रीजन पैदल चलना बहुत मुश्किल है। मेन प्रॉब्लम इज इफ आफ्टर इंडिया रीचेस PP14 गालवन फ्लैश पॉइंट PP14 पे अगर इंडिया अपना हक जमा लेती है, और जैसा कि होगा, उसके बाद चाइना कांट डू शिट। उसके बाद चाइना के हाथ में कुछ नहीं है। सो क्योंकि LAC फिक्स नहीं है, चाइना स्टार्टेड एक्सिलरेटिंग। उन्होंने चाइनीज पोस्ट चेक पोस्ट 1, चेक पोस्ट 2 से अपने कैंप्स आगे बढ़ाने शुरू कर दिए, उन्होंने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। अकॉर्डिंग टू जेनेवा कन्वेंशन एक वर्ल्ड वाइड फॉलोड कन्वेंशन है, उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि धक्का मुक्की इज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब है कि आप कुछ ऐसा करो जिससे कि वॉर लाइक सिचुएशन अराइव हो जाए या अराइज हो जाए। सिर्फ गोली चलाना, तोप चलाना, मिसाइल चलाना इज कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर इन द जेनेवा कन्वेंशन। धक्का मुक्की इज नॉट एन एक्ट ऑफ वॉर, सो दिस इज व्हाट चाइना इज डूइंग। चाइना ने लकड़ी के डंडे लिए, उन पे कीले ठोक कर और नोकीले तार लगाकर वो डंडे अपनी आर्मीज को सप्लाई करती है, और उससे उससे हमला करने की कोशिश करी गई, जैसा कि कल आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि क्या हुआ था। सो बेसिकली ये जो डंडे वाला सिस्टम है ये चाइना ने ही स्टार्ट किया था, कीले ठोक कर इस पे नुकीले तार लगाकर दूसरी आर्मी पे अटैक करने का। सो व्हेन दे स्टार्टेड मेकिंग दिस टेम्पररी कैंप्स,
A meeting was held on 6th June 2020 between the commandants of India and China. जो हाई लेवल कमांडर्स और कमांडेंट्स थे, आर्मी चीफ थे, उनके बीच में मीटिंग हुई और इस मीटिंग में इट वाज डिसाइडेड दैट चाइना वुड स्टेप बैक. ये जो टेम्पररी कैंप्स है, these would be removed. So on 15th June, CEO along with his men went to Galvan Flashpoint PP-14 for patrolling at midnight or late night. वो यह देखने गए कि इन्होंने जो चाइना ने जो टेम्पररी कैंप्स लगाए हुए थे, जितने भी अपने सेटअप करा हुआ था आर्टिलरी का, तो according to Chinese statement, have they removed it or not? When the CEO and his men from India reached there, कुछ झड़प हुई and they started beating each other. So और फिर उसके बाद जो हुआ वो सब न्यूज़ में है. So what China did before was इन्होंने पूरे एरिया में आर्टिलरी लगा दी थी. पूरे एरिया में यहाँ पे मिसाइल्स हो गए और जो भी आर्टिलरी थी वो सारी यहाँ पे डिप्लॉय कर दी थी. So what India did was इंडिया ने रिटेलिएट करा और इंडिया सेड कि वो मेरा डिप्लॉयमेंट करेगी. मेरा डिप्लॉयमेंट करेगी मीन्स कि मेरा डिप्लॉयमेंट क्या होता है कि जितना आर्टिलरी आपने लगाया है उतना ही आर्टिलरी हम लगाएंगे. दैट इज कॉल्ड मिरर डिप्लॉयमेंट. तो इतना ही लगाएंगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम. उससे ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि कोई भी उंगली ना उठा सके कि आपने इससे ज़्यादा आर्टिलरी कैसे लगाई. सो इंडिया डिड मिरर डिप्लॉयमेंट. सो आफ्टर द क्लैशेस इंडियन आर्मी ने पूरे इलाके में फोर्स लगा दी कि इसके बाद अगर कोई उंगली करेगा देन वी विल स्टार्ट शूटिंग. So this basically this is the whole issue why China is frustrated over Galvan Flashpoint PP-14 and wants to capture it so badly. So as we also see in the past in the Kargil war, Pakistan army was at a high point and Indian army was at low point. So being at a high point, Pakistan army was an had an upper hand. उसके पास ये एडवांटेज था कि हाई पॉइंट पे होकर वो इजीली टारगेट कर सकती थी इंडियन आर्मी को. अगर उस रात एयरफोर्स नहीं आती, इंडियन एयरफोर्स अगर हेल्प नहीं करती तो वी कुड नॉट हैव वन दैट कारगिल वॉर. सो द सेम सिचुएशन इज टुडे. दैट इज द रीजन व्हाई चाइना वांट्स टू कॉन्कर PP-14 टू हैव अ लेवरेज ओवर द इंडियन आर्मी. कुछ दिनों से सम पीपल आर ऑल्सो आर्ग्यूइंग कि चाइना आउटनंबर्ड है, चाइना के पास ज़्यादा टैंक्स है इंडियन आर्मी से ज़्यादा. बट आई वुड लाइक टू से कि जो टैंक्स है वो इस सिचुएशन में किसी काम के नहीं है क्योंकि बीइंग अ माउंटेन एंड टेरेन रीजन टैंक्स तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते. देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कॉलिंग टैंक्स ओवर हेयर. कॉलिंग क्या, अगर आप कॉल कर भी लोगे देयर इज़ नो पॉइंट दैट टैंक्स कुड कम ओवर हेयर बीइंग अ माउंटेन रीजन. सो द ओनली वन there is only one option, that is to fight hand in hand or by using guns and artillery whatever is used in the wars. So India certainly has an advantage and an upper hand. Uh, the second the second point that I would like to keep is that China does not have an airport in this region. तो अगर वो चाहे भी तो भी अपनी चाइनीज आर्मी एक एक बार में पूरी आर्मी डिप्लॉय नहीं कर सकते क्योंकि एक बार में प्लेन में कितने ही लोग आ जाएंगे जब आपके पास एयरपोर्ट ही नहीं है. What कल जो सिचुएशन थी, कल आर्मी एंड पीएम मोदी हैड इशूड अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि PP-14 जो पॉइंट है वो इंडियन आर्मी को बिलोंग करता है और इंडियन आर्मी का ही है. सो दे वुड नॉट वो ये पॉइंट दे विल नॉट लीव दिस पॉइंट PP-14 गालवन फ्लैश पॉइंट PP-14. ऑल्सो चाइना डज नॉट हैव एक्सपीरियंस टू फाइट इन टेरेन्स. वियतनाम वॉर आखिरी बार जब चाइना वॉज इन अ वॉर वॉज विद इन द वियतनाम वॉर. उसके बाद चाइना ने कोई वॉर नहीं लड़ी. सो दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस. मोरओवर जो चाइना का सीक्रेटिव एक एजेंसी है उनकी खुद की स्टेटमेंट ये थी कि जो इंडियन आर्मी है दे आर फेयरलेस एंड दे हैव अ वेरी हाई एक्सपीरियंस ऑफ फाइटिंग इन टेरेन्स एंड माउंटेन रीजन. सो देयर इज नो पॉइंट इंडिया कैन लूज फ्रॉम चाइना. ऑल्सो आई वुड लाइक टू रेज अ पॉइंट कि सियाचिन में देयर वर 19 चेक पोस्ट. दे वर कैप्चर्ड बाय द इंडियन आर्मी इन 1 वीक. एक हफ्ते में 19 चेक पोस्ट को कैप्चर करना, वो भी पाकिस्तान की चेक पोस्ट को कैप्चर करना विदाउट एनी डेंजर, विदाउट एनी डिफिकल्टी. दिस इज व्हाट द इंडियन आर्मी कैन डू.
तो जब सियाचिन की 19 चेक पोस्ट को एक हफ्ते में कब्जा किया जा सकता है तो फिर गलवान फ्लैश पॉइंट PP14 क्या है? Certainly, Indian Army has a certainly Indian Army has a very high advantage and an upper hand over all this situation, so we don't need to worry. Keep faith in the Indian Army and PM मोदी वो इतनी आसानी से गलवान फ्लैश पॉइंट PP14 तो नहीं देने वाले. जय हिंद.